वेलकम टू लद्दाख माय फ्रेंड्स। सबसे डेंजर एक्सपीरियंस है पहली बार। द कोल्ड इज किलिंग इट। आपके दोस्त आपके हाथ छोड़ देंगे। Yeah, it's that phase where you feel like crying. Fuck man, that was crazy. They came to my rescue. फट के हाथ में नहीं आई हैं, पूरी का पूरा फट गया है। वेलकम टू लद्दाख माय फ्रेंड्स। वेलकम टू रियल लद्दाख। क्या नाम बोला आपका? लोब्जांग लोंगता। अरे थैंक यू, एक बस, थैंक यू। अभी मेरे पास क्या है पता है? हाँ, मेरे पास बड़ा चॉकलेट है। वेलकम। Day 13th and today is 2nd August 2019 and we are almost set to leave for Pangong today. और कल रात मोनेस्ट्री गए, घर पे आए, घर का खाना मिला। बेसिकली दिस इज़ अमा's guest home and they themselves prepare the food and everything, homemade organic food which was really good. बहुत दिनों के बाद घर वाला खाना खाने को मिला और फिर जो नींद लगी, हम सीधा सुबह उठे। Everything is set, just supposed to leave, minor adjustments going on here and there and in another 5-10 minutes we should be leaving. तो चलिए चलते हैं पैंगोंग। और यहाँ से पैंगोंग है 165 किलोमीटर्स, शुड टेक अस अबाउट 5 आवर्स। चलो भैया, मिलते हैं। थैंक यू। एंड सो वी हैव लेफ्ट फॉर पैंगोंग। और आज का मौसम मोर टुवर्ड्स क्लाउडी साइड, काफ़ी बादल हैं, देख सकते हैं ऊपर। और ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है, होनी नहीं चाहिए। So it started raining and we had to take our raincoats out. अब इसको पहनूँ नहीं पहनूँ पहन लेता हूँ, देखते हैं। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो इसको निकाल देंगे। Driving round with my baby, top drops and raindrops, motion got me all faded, my heart got me going all crazy, and I won't be walking away, yeah. New York in the sunshine, I'm a fool, yeah. I got love blind, and ooh, yeah. Got my heart out, and it's covered in gold, like moonlight over Hollywood, and it's cool, yeah, 'cause you know it's good, oh baby. Looks like this is a pretty intense shooting area, so you'll find a lot of shooting areas in Ladakh. Now what a shooting area means, that the stones keep shooting downwards, because of which the roads get blocked sometimes and there is a risk of someone getting hurt. तो अगर कहीं पे आपको ऐसा साइन दिखे शूटिंग एरिया या शूटिंग स्टोन्स, make sure that you don't stand there, you move as soon as possible from that area.
There must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from heaven send. With me tonight, I run away. I run away. So there is a huge jam ahead. I don't know what's the reason. थोड़ा आगे चल के देखते हैं कि हुआ क्या है. लगता है जब पानी भर जाता है तो इन रास्तों से भी बहता है, बिकॉज यू कैन सी ऑल द रिवर स्टोन्स. क्या हो गया? यहाँ पे अभी पता नहीं बना रहा होगा ना. So because of increase in the water level, I think the traffic has been stopped. यहाँ पे चलना आसान नहीं, वहाँ पे हम गाड़ी लेके जा रहे हैं. The bike got stuck because of the weight. एक सेकेंड. थैंक यू. That tested the limits. Welcome to Ladakh, my friends. Welcome to real Ladakh. Thank you यार. So these guys helped me. Weight इतना है कि गाड़ी चढ़ नहीं पा रही थी, but finally made it somehow. तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आगे. Okay, you can see that one car is stuck. And efforts are being made to clear the road. So वहाँ पर भी ट्रैफिक स्टक हो गया है और यहाँ पर भी. देर हो गया अभी 1 घंटा. ज़्यादा हम लोग का हो गया. Okay, so now चला. स्पीड में ब्रेक नहीं लगा. स्पीड में वन स्टॉप.
सर 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 वेलकम टू लद्दाख। क्रैश गार्ड को एक बड़ा सा पत्थर लग गया जिसकी वजह से मेरा बैलेंस चला गया, और ये टैंक बैग भी थी। एक्चुअली मुझे इसको देना चाहिए था, देन इट वुड हैव बीन मच ऑफ अ प्रॉब्लम। और मेरी गाड़ी इतनी हैवी है। पैंगोंग अप्रोचिंग एंड आई थिंक मे बी अनदर 1 hour or so we should be in Pangong. Oh my god, now Ladakh is giving me real thrills. और अब आएगा मज़ा। तो पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा है। आता या श्योर या पुल ओ हाँ अभी खींचो। अच्छा वहाँ से जाना है। Fuck man, that was crazy. Actually, no problem. निकल गई गाड़ी, वही बड़ी बात है। So I have to go like this. So I had to actually go like this, and we just went there. पानी एड़ियों तक है, बाप रे। Lot of streams on the way to Pangong. So we have to stop here for permit. Pangong is 57 kilometers more to go. और ये देखिए पानी का बहाव। शाहरुख खान जब तक है जान शूटिंग पॉइंट। तो दोस्तों बस वहाँ नीचे तक जाना है। द फर्स्ट व्यू ऑफ द पैंगोंग लेक, और मेरे ख्याल से यहाँ से और 1 या 2 किलोमीटर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। सो यू कैन सी अ ब्लू कलर लेक, वही पैंगोंग है। तो चलते हैं। वैसे टेम्परेचर काफ़ी लो है यहाँ पे, एंड इट्स एट 14,000 फीट।
which is also supposed to be the lake at the highest altitude. So guys, we have reached Pangong और आगे जाना है हमें. निश्चय कर अपनी जीत करो. This is Lukung Post and we have to go ahead. Actually this is the military area, so we are not allowed to stop here. तो आगे चलते हैं. So ladies and gentlemen, boys and girls, I give to you Pangong Lake and it does look so beautiful. यहाँ पे एक आध पिक्चर ले लेते हैं. ha. You can see this is the spot where Three Idiots was shot, and you can see they have arranged similar scooters and everything, and yeah, people come to enjoy over here, and I can see that they are having a great time. और यहाँ पे खाने पीने की जगह है, रहने की जगह है. तो if whoever wants to come and stay can come down and stay over here. तो मैं एक दो तीन फ़ोटोज़ खींच लेता हूँ पहले, और फिर पहले कुछ खाते हैं और फिर चलते हैं अंदर, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लगी है. टाइम लगभग दोपहर के 3 बज रहे हैं. तो ये है पैंगोंग, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं थ्री इडियट्स वाली स्कूटर, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको. They charge you 100 rupees for photos. View is just see the clarity of the water. It's so crystal clear. Fraction of it is in India, the rest of it is in China, I guess. If I'm not wrong, 20% belongs to India, whereas the other 80% belongs to China. So 5 बज रहे हैं. ओके दोस्तों, सो दैट्स इट फ्रॉम पैंगोंग, एंड अब हम वापसी कर रहे हैं. अमोल भाई और प्रदीप भाई की जो छुट्टियां हैं वो सिर्फ 7 तारीख तक हैं. तो अभी हमको उतरना है मनाली से, तो उसमें ही हमको कम से कम 3 से 4 दिन लगने वाले हैं. 4 दिन नहीं, 3 दिन तो लग ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अभी जितना कवर होगा उतना कवर करेंगे. कल हम लोग मनाली पहुँचेंगे, फिर परसों चंडीगढ़. या सो 3 days फॉर चंडीगढ़ एक्चुअली, नॉट मनाली. तो चंडीगढ़ पहुँचने की कोशिश करेंगे, और फिर वहाँ से देखते हैं अपने अपने रूट शायद चेंज हो जाए. आई माइट टेक अ ट्रेन और अ फ्लाइट. Okay, so luckily the rain stopped and I've worn my leather gloves, and now I feel much better. We just crossed Tangse, and now we are approaching Durbuk. Okay, so we have reached Durbuk. भैया हेमिस के लिए कैसे जाना है? हाँ, हेमिस के लिए ठीक है, और वहाँ से मनाली जा सकते हैं. ठीक है, थैंक यू. Okay, so we are at 16,500 feet, and the bike is struggling to climb. It's constantly on first, most of the times first gear, and sometimes second. यहाँ पर शायद ऑक्सीजन की कमी है. You can feel it also that the air also is very thin, and so is the oxygen. So this will take us to Changla Pass, and we have to go to Kharu today.
खारू में रुकेंगे, देखते हैं अगर खारू से आगे कुछ बनता है तो वहाँ चलेंगे, वरना आज तो खारू में रुकने का प्लान है। लेदर ग्लव्स में भी ठंडी काफ़ी चुभ रही है, इट्स नॉट दैट इजी। आई थिंक जितना श्रीनगर टू ले था उससे कई ज़्यादा टफ ले टू मनाली होने वाला है। So this is as tough, as risky and as bad as it can get. We are climbing Changla Pass and temperatures are really at freezing. और रास्ते तो आप देख ही रहे हो। This has to be the most adventurous thing that I have ever done in my life. Trust me, it is really very risky, क्योंकि टाइम ऐसा हो चला है। अगर ये टाइम सुबह का होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है and it's getting freezed, hands are getting freezed। बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि वी शुड हैव स्टॉप्ड एट दुर्बुक एंड देन कंटिन्यू टुमारो, बट अब निकल गए हैं तो कुछ कर नहीं सकते। हैव टू कीप मूविंग नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स। वन कैन easily break down over here looking at these roads, you know, it is so tough। मुझे बस घर की याद आ रही है अभी और कुछ नहीं, because it's getting so tough and tough and tough every passing second। The height is getting more and more। I think we are more than 17,000 feet now। और आप देख सकते हो ये तो हम लोग बर्फीली चोटियों तक पहुंच गए। And every single second it's hurting, the hands are freezing, the legs are freezing। Come on man, हम कब डिसेंड करेंगे? झूठ नहीं बोलूँगा दोस्तों, फट के हाथ में नहीं आई है, पूरी का पूरा फट गया है। और ये देखिए बाइक भी अभी क्लाइम नहीं कर रही है। इट इज़ सो बैड। और आई डोंट नो वेयर द रेस्ट आर, वो शायद नीचे हैं, आ रहे होंगे। आई एम जस्ट प्रेइंग दैट दिस patch gets over as soon as possible, because now my hands are really numb। Yeah, it's that phase where you feel like crying, not just because this can't be done, it can be done, but I'm doing it at the severest of conditions। It's just the cold is killing it। Let me go, let me go, let me go, let me go। Thank you। This mountain is not giving up on me, and neither am I gonna give up on this mountain। This is called hard riding, so be it। अच्छा, आगे से थोड़ा अच्छा पैच दिख रहा है। Okay guys, so we have reached the top of Changla। Yes, it's easily above 17,000 feet और अब डिसेंड करना है चांगला पास। So let's go as soon as possible। I guess the roads are not good,
तो टाइम लगेगा खारू पहुंचने के लिए, बट एटलीस्ट अगर ये बर्फ़ वाली चोटी से नीचे उतरूं तो थोड़ी सी राहत मिले। सो थिंग्स गॉट फ्रॉम बैड टू वर्स। हुआ ये कि वो जो रेड कलर की बैग जो बंधी हुई थी मेरे गाड़ी के पीछे, पता नहीं कब छूट गई एंड एवरीथिंग जस्ट फेल ऑफ, और मुझे रियलाइजेशन भी नहीं हुआ क्योंकि रास्ते गड्ढे इतने ख़राब थे। आई हैव नेवर ड्रिवन एनीथिंग मोर वर्स देन चांगला पास। फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और रात को भयानक एक्सपीरियंस था। दे केम टू माई रेस्क्यू। तो मैं यहाँ पे आर्मी पोस्ट पे रुका हुआ हूँ और अंदर वहाँ पे वो लोग एक सिगड़ी रखे हुए हैं जहाँ पे मैंने अपने हाथ वगैरह सीखे। सो नाउ माई हैंड्स हैव बिकम नॉर्मल, बट पैर भी थोड़े से गर्म हो चुके हैं। नाउ आई थिंक आई फील बेटर, मच बेटर। प्रॉब्लम ये है कि अमूल आ गए हैं, अमूल जो बड़े वाले अमूल हैं, बट अमूल और दीपक अभी तक नहीं आए हुए हैं तो उनका वेट कर रहे हैं। सो लेट्स सी। ओके, सो अमूल और प्रदीप भाई भी आ गए हैं तो मेरी जान में जान आ गई। एंड बस अब सब लोग वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल चेक करवा रहे हैं और थोड़ा सा हीटर में अपने हाथ और पैर सेक रहे हैं। स्किन पूरी पपड़ी हो गई है। माई ऑक्सीजन लेवल इट्स 83, SpO2 इज़ 83 विच इज़ रियली वेरी गुड। यहाँ पे मिनिमम 70 के ऊपर होना चाहिए। See my eyes, they tell all the story. Changla Pass, sorry man, never ever again Changla Pass। आज का दिन जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। चारों में से कोई भी आज का दिन नहीं भूलने वाला। ये मैं लिख के देता हूँ, बॉन्ड पेपर पे साइन करके देता हूँ। चला भी नहीं सकता। एक दो बार तो मेरी गाड़ी ऐसे उछल गई खड्डों से, और वो स्ट्रीम्स भी इतने भयानक थे। शाम का टाइम था और स्ट्रीम्स दिख नहीं रहे थे, वो घुटनों तक पानी डीप था। आई डोंट नो हाउ आई सर्वाइव चांगला पास। ऑल आई कैन से दैट prayers came for the help and I reached safe and sound. So Karhu is about 22 kilometers ahead. Today was more than adventurous, more than what we asked for. गाड़ियाँ थी वो नीचे गिरी हुई है खाई में। अरे बाप रे। हमारी फौजी गाड़ी नीचे गिरी हुई है, जो चंगला टॉप देखा ना आपने, वहाँ से नीचे गिरी हुई है। ना ध्यान दिए होंगे, ध्यान नहीं दिया होगा। ऊपर क्या हुआ था, गाड़ी जा रही थी तो अचानक स्लाइडिंग आ गया बर्फ का, उसके साथ चला गया। बहुत गाड़ी तो नहीं बचे। इधर भी गिरे बंदे। ये थोड़ा सा तो यहाँ पे हम लोग सेक रहे थे। थोड़ा ऊपर सेको और ये पूरा ये गाड़ी तुमको चलाना है चलाओ, मैं जा रहा हूँ मनाली टोयोटा बस उधर से चला गया ऊपर। पहली बार लाइफ में रोने जैसा हो गया ना। बेकार सबसे डेंजर एक्सपीरियंस पहली बार। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू खारू, और जो मदद हमें मिली है आई थिंक इट इज़ अनफॉरगेटेबल। सच कहता हूँ दोस्तों, आर आर्मी इज़ द बेस्ट आर्मी, क्योंकि जो मदद ये लोग हमारी करते हैं, नॉट जस्ट टू सर्व द नेशन, बट जैसे आप ऐसी कोई जगह आए हो और आप परेशानी में हो, आपकी मेडिकल हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर आपकी बाइक ब्रेक डाउन हो गई, गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, दीज आर द पीपल whom you can rely without any doubt दोस्तों। ये सही में कह रहा हूँ मैं। आपके दोस्त आपके हाथ छोड़ देंगे, आर्मी जब आप मुसीबत में हो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। रिस्पेक्ट टू द इंडियन आर्मी एंड दे आर सर्विसमैन। I just love Indian Army guys, I just love them। सबको यही लग रहा था कि this was the worst ride जो कभी किया है या जो कभी कर सकते हैं, because it was not just about the road। वो इतना भयानक मौसम था ऊपर, we could have
easily had hypothermia. पता नहीं था, तो I am telling you viewers, please 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 don't cross Changla Pass in the evening time after 4 o'clock especially. चाहे कुछ भी हो जाए, क्रॉस मत करना, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे इतने जल्दी गिरना स्टार्ट होता है, आप बिलीव नहीं कर सकते. एंड माई हैंड्स वर कम्प्लीटली फ्रोजन. द फर्स्ट टाइम आई लिटरली गॉट स्कैर्ड फॉर माई लाइफ, इवन दो वी आर 4 people टुगेदर, बट फिर भी डर लगा. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना भयानक रहा होगा हमारे लिए. एनीवेज, खारू पहुंच के मैं आपसे बात करता हूं, क्योंकि अभी मुझे जितना जल्दी हो सकता है उतना खारू पहुंचना पड़ेगा. एंड वी हैव टू फाइंड अ रूम. तो चलिए खारू तक जाते हैं एंड देन आई विल अपडेट यू गाइज. ओके, सो जस्ट रीच्ड खारू, और अभी यहाँ पर अपने को रूम ढूंढना पड़ेगा. पहले रूम ढूंढेंगे, सेटल होंगे, फिर खाना खाएंगे. कोई रूम दे दो यार. रूम मिलेगा? ओए, यहाँ खुले में शौच करना मना है. खुले में शौच